collision means called as having collided with something else. So there are two type of collision. One is called as elastic collision, and another thing is called as inelastic collision. You are aware about that word that is called as elasticity. Are you aware about that word elasticity? Can anyone tell me what is elasticity? Flexibility. Flexibility, okay. दूसरा कुछ? तो elasticity का meaning basically what we are using is that after collision, its kinetic energy remains conserved, or you can say that is called as unaffected. So if my object has been collided with something, इसका initial kinetic energy, let's say I'm assuming that 2 joules है, and then it is moving and bouncing with some surface, and after collision again it is remaining, it's maintaining its own kinetic energy. It means that its kinetic energy remains unaffected. It is called as a kinetic energy is unchanged. That type of collision is called as elastic collision. Inelastic collision is called as after collision, its a kinetic energy gets affected. It means that it is changed. And that type of collision is called as our inelastic collision, in which kinetic energy is affected. So that is how your elastic and inelastic collision will be placing its role. Now we will start about our initial propaganda that is called as elastic collision. So very first part I am starting with, it is called as elastic collision. So someone says, okay, sir, in elastic collision, you are saying that kinetic energy gets unaffected. It means that its velocities also gets unaffected. It means its mass is not going to change. Yes, it means that your mass and velocity both are conserved. Because if you are thinking that I have a ball, मेरे पास ball है, इसने collide किया, collide करने के बाद velocity change हो सकता है, yes हो सकता है. But mass, some objects are so rigid that after having collision with the surface, it is not busted up, टूट नहीं जाता है. It is not separated in small fragments. छोटे छोटे parts में separation भी नहीं होता है. What I am suggesting is that ball है हमारा खेलने का, same ball यहाँ पर after collision उसका mass is not going to be affected, its velocity is not going to be affected. It means that which is following Newton's third law thoroughly. So that the amount of a force you have applied, same amount of force it is bouncing back. So here elastic collision is what? Your object having same mass before collision and your object is having the same velocity after collision, and mass is not going to be affected. So initially what I am using is that here I am showing you two figures. First one having let's say I have a very first ball and I have another ball, and let's say they are now in contact with each other. Let us call as a collision, and then after collisions figure would be there. So this is the figures. So I am naming them with their proper nomenclature. So this is the figure that is called as a before collision. This is the figure of collision, and this is the figure after collision. Chaliye, I am putting their nomenclature properly. So my object is called as, let's say, naming it as a M1, naming this one as M2. You can name it anyone, M1 and M2. This is my M1, this is my M2, and this is my M1 and M2. I am aware that each and every object contains some velocity, because I have mentioned kinetic energy is a combination of mass and velocity as well.
So this is the velocity of my second object. This is the velocity of my first object. यहाँ पर collision हुआ. That is why I'm not putting any type of velocities. After collision, I am putting that velocities. Let's say this one. So now I am putting that. This is my velocity is called as the initial velocity. We are denoting with the symbol u. So this is the initial velocity u1. This is the initial velocity u2. This is the after collision velocity, that is called as a v1 and that is called as a v2. So now I am putting first of all those data whichever I have placed over here. So let's say you are aware about m1 and m2. So I'm putting that m1 and m2 are called as masses of spheres because I have taken sphere shape. u1 and u2 are called as initial velocities of a sphere or object. You can take a name anything. So let's say I'm just putting that object m1 and m2. I have followed that order. That is why I'm using this word respectively. Same is the course of v1 and v2. v1 and v2 are called as the final velocities of object m1 and m2 respectively. So I thought that it is quite clear to you. Boliye. सर ये मतलब कोलिशन हो रहा है तो ये जो एरो आपने ड्रॉ किए वो आमने सामने नहीं होने चाहिए. सी अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि कोलिजन कब होगा अगर मेरा u2 का वेलोसिटी ज्यादा होगा और u1 का कम होगा तो देर आर लेस चांसेस के कोई कोलाइड हो क्योंकि ये आगे मूव होता ही रहेगा. ये रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं हम लोग. कोई पर्सन है वो वॉक करके मूव हो रहा है, कोई जो है वो गाड़ी में मूव हो रहा है, तो दोनों का वेलोसिटी ऐसा ही है कि देर आर नॉट गोइंग टू बी कोलाइडिंग. तो यहाँ पर हम लोग वो केसेस देखेंगे. तो हम लोग सामने सामने प्लेस करना चाहिए कोलिजन होने के टाइम पे. इट इज नॉट नेसेसरी. मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरा m2 जो है वो 2 मीटर पर सेकंड से मूव हो रहा है और m1 जो है 10 मीटर पर सेकंड हो रहा है. तो चांसेस है कि दोनों का कोलिजन होगा. या तो ऐसा बोलूं कि m1 का लेस है और m2 का ज्यादा है, पीछे से आ रहा है या तो सामने से आ रहा है. तो यस, कोलिजन तभी ही होगा जब दोनों का डिफरेंस इन द वेलोसिटी होगा. दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा तो कोलिजन इज नॉट गोइंग टू हैपन. या तो दोनों का कांस्टेंट से हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा हुआ है, इट इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव वेलोसिटी. तो दोनों अगर पैरेलली मूव हो रहे हैं तो दैट इज ओके, वो डिफरेंस जो होगा वो थ्रू आउट मेंटेन रहेगा. तो दिस इज हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फॉलो दैट इलास्टिक कोलिजन का वेरी फर्स्ट थिंग वी हैव प्लेस्ड. चलिए, एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन हम लोग को पता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट जो है उसका वेलोसिटी क्या करना चाहिए. तो लेट्स से हम लोग ऐसा प्लेस करते हैं कि भाई हमको इनिशियली ऐसा प्लेस करते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है वहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम पुटिंग दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. अभी यार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये है कि इनिशियल और आफ्टर का जो मोमेंटम रहेगा वो कंजर्व्ड रहेगा. तो लेट्स आई एम पुटिंग दैट लेफ्ट हैंड साइड p1 प्लस p2 एंड राइट हैंड साइड पर बोल रहा हूं p1 डैश प्लस p2 डैश. अभी यार ये p1 डैश या p2 डैश क्या है? चलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं. तो लेट्स से p1 and p2 are momentum of spheres या तो objects before collision, while p1 dash and p2 dash are called as momentum of objects after collision
अब यार कोलिजन होने के लिए किसी का वेलोसिटी ज्यादा किसी का कम होना चाहिए, हम लोग वो प्लेस करते हैं। बट यार मोमेंटम को तो हमको पता है कि भाई मोमेंटम का मीनिंग क्या होता है, तो बोलेंगे मोमेंटम का मीनिंग होता है p इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। Mass into velocity. चलिए, P1 जो है वो मेरा फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है, P2 जो है वो सेकंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है, तो लेट्स से वो प्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं। M1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास, U1 फर्स्ट ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, M2 फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास एंड U2 इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट्स इनिशियल वेलोसिटी। नाउ P1 डैश इज कॉल्ड एज M1, तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, बट वेलोसिटी है इनिशियल और बाद में फाइनल है V1। M2 है वो मास है, remains constant, and V2 is called as my velocity of the second one. So this is the very first expression after our law of conservation of momentum remains conserved. Yes, you can also add one more thing in elastic collision, that its momentum remains conserved. It is called as our elastic collision. चलिए भाई, जो फॉर्मूलास में मुझे प्लेस करना था वो तो मैंने प्लेस कर लिया है। अभी मुझे उसका फॉर्मूला फाइंड करना है कि भाई मेरा दो वाले जो मास है उसमें से और मेरा जो फर्स्ट वाला जो है उसमें से मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा। तो व्हाट आई एम डूइंग इज दैट मेरा M2 वाला जो ऑब्जेक्ट है वो और मेरा जो सेकंड वन वाला जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों को मैं साथ में लेकर आ जाता हूँ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो व्हाट आई विल प्लेस इज दैट M1 वाले एक साइड पर और M2 वाले एक साइड पर। So what I will have is that M1 U1 minus M1 V1 is equals to M2 V2 minus M1 and U2. So what I did is that place M1 object on the left hand side and M2 object on the second side. एक minute. M2 U2 और वो place करना है, तो let's say that would be the M2. So what I did is that M1 having the same masses object on the left hand side and another on the right hand side. Hope that it is quite clear to you. You can say common, तो M1 मेरा जो है वो एक साइड पर कॉमन निकल गया, तो U1 minus V1 is equals to M2 को कॉमन निकाल लिया, तो that is called as V2 minus U2. तो ये रट्टा मारने की चीज नहीं है, तो यू कैन से दैट इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड वन, और यू कैन से दैट इज कॉल्ड एज अ बी। जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे M1 का वैल्यू प्लेस करना है या तो M2 का वैल्यू प्लेस करना है, तो वी विल टेक अ हेल्प ऑफ एक्सप्रेशन नंबर बी। क्योंकि M1 को वैल्यू प्लेस करना है तो व्हाट आई विल डू इज दैट M2 V2 minus U2 डिवाइड बाय U1 minus V1, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, दैट इज द थिंग आई विल प्लेस ओवर हियर। तो यहाँ पर what I did is I have followed law of conservation of momentum, and I just followed that procedure before collision momentum, after collision momentum, and then gradually gone through the expression number A and B together. And that is quite clear to you, hopefully. यहाँ तक सबको कोई डाउट नहीं है, तो आगे जाता हूँ मैं। क्लियर है यहाँ पर? यस सर। Yes, sir. अभी what I am going forward is that is called as our kinetic energy. अभी kinetic energy का भी फॉर्मूला तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि क्या कांस्टेंट है। चलिए भाई, जहां पर आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने लिखा हुआ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वैसे ही मुझे लिखना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे इक्वेशन नंबर जो 1 लिखा हुआ है वैसे ही काइनेटिक एनर्जी का लिखना है, तो क्या करना चाहिए? जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला लिखा हुआ है, वैसे ही मुझे काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई विल डू इज सेकंड प्रोसीजर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसका मीनिंग ये हुआ काइनेटिक एनर्जी बिफोर collision equals to kinetic energy after collision.
चलिए बिफोर में आई हैव टू काइनेटिक एनर्जीज and after may I have also two kinetic energies of the first object and second object. So what I will place is that k1 plus k2, and here I have k1 dash and k2 dash. चलिए इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेते हैं, देन वी विल मूव टू दी अनदर पार्ट कि भाई ये सब क्या है। तो चलिए k1 and k2 are called as kinetic energy of object first and second before collision. While k1 dash and k2 dash are called as kinetic energy of object first and second after collision. चलिए भाई लिख तो लिया है तो फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, हाफ टाइम m1 u1 का भी स्क्वायर प्लस हाफ टाइम m2 u2 का स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ टाइम m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ टाइम m2 v2 का भी स्क्वायर। चलिए भाई कुछ कॉमन तो दिख रहा है जो कैंसल होने के लिए हमारे हाथों में, इट इज इचिंग, ये यार खुजली तो हो रहा है, निकाल लेते हैं जो एक्स्ट्रा है वो। तो हाफ सब में से कॉमन एंड कैंसल आउट, तो लेफ्ट पार्ट विद अस इज m1 u1 स्क्वायर। व्हाट आई एम डूइंग इज द सेम प्रोसीजर, मैं आगे वाला जो किया था वही प्रोसेस यहाँ पर भी फॉलो कर रहा हूँ, तो इट विल गिव मी समथिंग आंसर। यार सर m1 वाला साइड में एक ले लीजिए, तो दैट इज कीपिंग वन स्टेप, तो माइनस ये हो गया m1 v1 का भी स्क्वायर, सेम मास इज ऑन द सेम साइड, that is called as m2 v2 square minus m2 u2 square. Now what I am doing is that following the same procedure likewise we did in the momentum part, I am bringing out m1 common, so that will be m1 is common, that is why I have a u1 square minus v1 square. Now it is m2 v2 square minus u2 square. Be careful, be cautious that whenever you are putting these numbers, even a minor mistake may lead to the another new invention. कोई नई इन्वेंशन नहीं करनी है हमको, जो है वो प्रूव कर लेते हैं, देन 2 3 4 साल बाद के बाद यू आर इन द पोजीशन जो करना है कर सकते हैं आप लोग, बट अभी तो जो प्रूव्ड है उसको ही फॉलो कर रहे हैं। देन यू हैव m1 कॉमन निकाल लिया तो लेफ्ट हैंड साइड रह गया u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ओके वी हैव प्लेस प्रॉपर्ली। On the right hand side we have a v2 square minus u2 square, again same thing we have followed, but we are aware from the primary that a square minus b square is called as a minus b and a plus b, ऐसा कोई factorization पढ़ा होगा। So let's say we have m1 that is called as a u1 minus a v1 and then a u1 plus v1 is equals to m2. We can say that v2 minus u2 v2 plus u2. Let's say this would be the equation number C. This is equation number C. तो पुराने टाइम में एक डायलॉग था, भाई मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। तो देखिए भाई इक्वेशन नंबर बी में कुछ दिख रहा है, इक्वेशन नंबर सी में कुछ दिख रहा है, तो इफ वी आर फॉलोइंग एंड टेकिंग दैट रेशियो may lead us to some new equation relationship। तो चलिए क्या कर सकते हैं, तो I will just follow these expressions may give me some value। क्या मिल सकता है, चलिए देख सकते हैं क्या मिल सकता है। So let's say I am following that equation number C is divided by equation number B. Equation number C जो है वो है मेरे सामने, तो m1
u1 minus v1, u1 plus v1 divided by something which is to be placed m2 v2 minus u2 v2 plus u2 divided by something. चलिए आगे वाले वैल्यूज लिख लेते हैं m1 u1 minus v1, m2 v2 minus v2. तो that is called as m1 u1 minus v1. Here that is called as mv v2 minus u2. फिर से एक बार, क्या भाई फिर से एक बार क्या होगा? फिर से एक बार मोदी सरकार, वो नहीं बोलना है भाई, मोदी सरकार यहाँ नहीं लानी है, मोदी सरकार का कोई रिलेशनशिप नहीं है यहाँ पर. तो what we did is that v1 and u1 लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट एंड हमारा एक दूसरा राइट हैंड साइड पर कुछ बचा है, तो ये है मेरा u1 plus v1 is equals to u2 plus v2. प्लस में आगे पीछे किसी को भी लगा सकते हैं. सर एक काम कर लेते हैं, वेलोसिटी फाइनल का एक साइड पर, इनिशियल का एक साइड पर लगा लेते हैं. तो व्हाट वी विल प्लेस इज ओवर हियर इज u1 minus u2 equals to v2 minus v1. चलिए ये जो लिखा हुआ है इसको एक अलग ही नए मोड पे वी विल रिप्रेजेंट इट. तो ऐसा लिख सकते हैं v2 minus v1 डिवाइड बाय u1 minus u2 equals to 1. चलिए भाई ये जो रेशियो आपके सामने है, that ratio is called as elasticity constant. ये जो 1 मिला ना उसको बोलते हैं elasticity constant. ये जो 1 है तो we can say that E equals to 1. तो इलास्टिक कोलिजन के लिए E equals to always 1 होता है. इन इलास्टिक के लिए we are supposed to find out the same thing. अभी आगे वाले थियरी में देखते हैं. तो E equals to 1. तो अभी इलास्टिसिटी का एक नॉर्मल वाला डेफिनेशन भी प्लेस कर लेते हैं कि भाई इलास्टिसिटी क्या होता है. इसको बोलते हैं रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटीज. तो अभी यार चेंज इन मैं बोलता हूं फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन इनिशियल वेलोसिटी. तो ये जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी रेशियो या तो इलास्टिसिटी. तो ऑलवेज याद रखना है कॉम्पिटिटिव के लिए भी और यहाँ पर भी इलास्टिक वेलोसिटी या तो इलास्टिक कोलिजन का थियरी लिखिए तो आपको यहाँ तक का प्रूव करना है इक्वल्स टू 1 तक. लिखा है कि इलास्टिसिटी इलास्टिक कोलिजन के लिए 1 दिखाइए, तो ये आपके सामने रखा हुआ है. तो होप दैट इलास्टिसिटी कोलिजन जो है इज कॉल्ड एज v2 क्या है, इट इज कॉल्ड एज अ फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट. v1 क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ इनिशियल ऑब्जेक्ट. तो that is called as a v2 and v1 are called as the final velocities of first and second objects. Same is the course of a u2 and u1. अभी u2 and u1 are called as the initial velocities. उसको हम लोग we are not supposed to derive it. But हमारे पास जो final velocities जो है v2 and v1 that we have to prove. तो चलिए तो वही चीज को हम लोग आगे वाले जो फॉर्मूलाज जो थे उसमें प्लेस करना स्टार्ट करें. उससे पहले हमारा लास्ट वाला जो इक्वेशन था वो इक्वेशन आई एम जस्ट पुटिंग इन फ्रंट ऑफ यू. So we have proved this expression that is called as a v2 minus v1 is equals to that is called as a u1 minus u2. चलिए ये वाला एक्सप्रेशन हम लोगों ने डिराइव किया था आगे. अभी यही इक्वेशन जो है उसको लेट्स से आई एम पुटिंग इन अ प्रीवियस एग्जांपल्स. तो प्रीवियस वाले कौन से फॉर्मूलास है हमारे पास. तो इक्वेशन एक हमारे पास था लेट्स से a नंबर का, तो उसमें हम लोग इसका फॉर्मूला प्लेस करेंगे. But let's say I'm just putting this v2 as focus of my expression. v2 को मैं फोकस बना लूं तो मेरे पास क्या रहेगा. तो let's say मैं v2 को फोकस बना लूं तो मेरे पास इक्वेशन ऐसा बनेगा u1 minus u2 plus v1. Let's say this expression has been placed in equation number b या तो इक्वेशन नंबर a का जो भी फॉर्मेट है उसमें प्लेस कर देते हैं. मेरे पास यहाँ पर एक एक्सप्रेशन जो है वो डायरेक्टली मैंने लिखा हुआ था, वो यहाँ पर ऐसा है m1 v1
प्लस लेट से मेरे पास है m2v2 इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2, जो मेरा इक्वेशन बी था वो उसमें मैंने उसको ऐसे बनाया हुआ था। नाउ दी अबव एक्सप्रेशन जो है उसको बी में प्लेस करते हैं। वो जो बी जो था वो मेरे पास मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो लेट्स से वी विल स्टार्ट टू प्लेस इट्स वैल्यू। अबव जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू में प्लेस करना स्टार्ट करता हूँ। चलिए m1v1 एज इट इज, m2 एज इट इज, v2 का वैल्यू हमारे पास ऊपर है u1 माइनस u2 प्लस v1 इज इक्वल्स टू m1u1 प्लस m2u2। चलिए सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करते हैं। देन वी विल हैव m1v1 प्लस m2u1 माइनस m2u2 प्लस m2v1 इक्वल्स m1u1 एंड m2u2। चलिए अभी क्या करना है, तो लेट्स से समथिंग इज कॉमन तो कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास m2u2 नहीं कैंसिल हो सकता है, और कुछ कैंसिल होगा ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, तो हमारे पास हमको v1 जो है वो फाइनल वेलोसिटी कुछ मिले ऐसा कुछ लग रहा है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज दैट m1 v1 जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, m2 v1 को भी लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, और जो इनिशियल वेलोसिटी वाले जो है उनको राइट हैंड साइड पर आई एम जस्ट शिफ्टिंग। तो ये हो गया मेरा m2u1 और माइनस माइनस प्लस हो गया मेरे पास m2u2। अभी m2u2 वाली मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड से v1 कॉमन, तो आई कैन हैव m1 प्लस m2। आई हैव m1u1 प्लस 2 टाइम्स m2u2 एंड माइनस m2u1। बट यार मुझे ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट एंड सेकंड में से m1 एंड m2 वाले जो है उसमें से आई कैन ब्रिंग आउट समथिंग कॉमन। एक काम कर सकते हैं कि सर आपके पास u1 वाली जो क्वांटिटीज है दोनों को साथ में ले ले तो काफी अच्छा रहेगा। राइट हैंड साइड पर एक फर्स्ट वाला दिख रहा है m1u1, एक लास्ट। तो सेम थिंग आई विल जस्ट से दैट कि जो मैंने लिखा था वही चीज को मैं आपके सामने फिर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो मेरे पास था लेफ्ट हैंड साइड पे था v1 m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड पर मैं टर्म को अरेंज कर रहा हूं। पहला लिख रहा हूं m1u1, लास्ट वाला जो था उसको मैं लिख रहा हूं उससे पहले ऐसा का ऐसा ही लिख रहा हूं, एंड माइनस आई हैव m2u1। चलिए अरेंजिंग दिस टर्म्स, बाय अरेंजिंग दिस टर्म्स आई विल हैव लेफ्ट हैंड साइड पर v1 m1 m2, थर्ड वाला टर्म को साथ में लेकर आ रहा हूं m1u1 माइनस m2u1 प्लस ट्वाइस टाइम्स m2u2। चलिए भाई v1 को फोकस बना लेते हैं, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है पहला जो टर्म है उसमें से m1 माइनस m2 रहेगा, u1 कॉमन, twice times m2u2 whole to the base m1 plus m2। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे पास जो था m1 plus m2 उसको मैंने कॉमन निकाल लिया, और दूसरा जो था इट इज बीन प्लेस्ड लाइक दिस वन। तो मेरा फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज रेडी, m1 minus m2 into u1 divided by m1 plus m2 plus twice times m2u2 divided by m1 plus m2। So this is my final velocity of a first object। तो भाई ये तो क्लियर हो गया।